جی محمد پاسو صاحب آ گئے. جی پاسو صاحب آپ کیری آن کیجیے. جی بھائی صابر آپ دعا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی چلے میں کرتا ہوں دعا. شکر ہے خداوند کا کہ خدا کی آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے. یہ موقع کی برکت ہے اور ہم سب خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک تیرا شکر ہو. خداوند تجھے ہم بارک کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس مبارک وقت کے لیے جو تو نے ہمیں ہماری زندگی میں دے دیا تاکہ اے خداوند ہم تیرے نام کو جلال دے, تیرے نام کی ستائش کریں. اے خدا تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. اے باپ تیرا شکر ہو آج کی ساری پرستش کے لیے, اور جن بہن بھائیوں نے حصہ لیا ان سب کو برکت دے, اور جتنی جماعت نے سنا خداوند ہم سب کو برکت دے. اے باپ تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. خداوند تجھے ہم بارک کہتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے. اور ابھی جب خداوند ہم تیری آواز کو سننے کو کہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. اے خداوند میں خاص ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہمارے ساتھ کلام کرے, اور جو بھی کلام کرے وہ ہماری زندگی میں اثر کرے تاکہ ہم ایک نیک زندگی گزار سکیں, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور مسیحیت میں آگے بڑھ سکیں. کیونکہ جب ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں تو برکت پاتے ہیں, کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے ساتھ ہیں. اے باپ تیرا شکر ہو, اے باپ تیرا شکر ہو. خداوند ہمیں فضل دے کہ اس مشکل دور سے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں خداوند تو ہمیں سنبھال کے رکھ. تو ہمیں ہمیشہ اپنے کلام کے ذریعے زندہ رکھ تاکہ ہم تیرے کلام سے برکت پا کے آگے بڑھیں اور تیرے نام کو جلال دیں. اے خداوند میں ڈاکٹر جوزف صاحب کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں اور حاضر جماعت کے لیے برکت چاہتا ہوں, یسوع کے نام سے آمین. آمین آمین. تھینک یو بھائی صابر. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے. خدا بندی سے تو آئیے ہم آمین. جو ہم اپنے کیا ہے سب کچھ سنائیں کہ ہم آمین. نکی بیٹے خداوند آپ کو بہت برکتوں سے مالا مال کرے, اور بھائی صابر کے لیے شکر گزار ہوں, والد صاحب کے لیے شکر گزار ہوں, تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں, اور اس خدا کا جسے ہم جانتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں, ہماری ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کون سی کتاب شروع کرنے والے ہیں. اور کون سی کتاب ہم ختم کر چکے ہیں. اچھا شاگرد وہی ہے جو دوسرا کھیل جو ہم نے فنش کیا ہے اور غلطی کے نام پڑوس رسول کا خط جو وہ آج ہم شروع کریں. آمین آمین. تھینک یو. یہ تو نہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہے اور نہ کسی کو نیچا کرنے کی بات ہے. یہ بات ہے اچھا شاگرد جو ہے وہ ان باتوں کو یاد رکھتا ہے جو بتائی جاتی ہیں, ان کو یاد رکھتا ہے. اور میں آپ جانتے ہیں کہ ہر بات کو رپیٹ کرتا ہوں, شاید آپ کو برا تو لگتا ہوگا, لیکن رپیٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ زیر نشیں ہو جائے, اور رپیٹ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ نئے جو ممبران ہوتے ہیں, نئے مہمان جو ہوتے ہیں یا جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. تو یہ ایک ٹیچنگ کا اصول ہے اور یہ سمجھانے کا بھی ایک اصول ہے, اور اسی اصول پر چل کر جو میں نے سیکھا ہے یہاں پر آ کر وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
اور اس میں فخر نہیں بلکہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو امریکہ میں آ کر میں نے سیکھا وہ پاکستان میں جو بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں جو بیٹھے ہیں، لندن میں جو بیٹھے ہیں، نیدرلینڈ میں جو بیٹھے ہیں، بیلجیم میں، سب کو اس کی اسٹڈی سے فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اداروں میں اس کلام مقدس کو جو ایک ہے، چاہے بیلجیم ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، امریکن انداز میں اس کو پیش کرنے کے لیے، یا جو بھی انداز ان کو پسند ہے، اگر لندن والے اچھا پیش کرتے ہیں تو وہ انداز اپنانا چاہیے، اگر پاکستان والے کلام اچھا پیش کرتے ہیں تو وہ، یہ ایک شاگرد کی کوالٹیاں ہیں کہ جو ایک نہ ایک دن سمجھ کر، جان کر، پہچان کر نہ سمجھوں کے پاس اس کلام کو لے کے جاتا ہے، وہ اچھا شاگرد کہلاتا ہے۔ اور جب ہم خود ہی نہ سمجھے تو فائدہ کوئی نہیں۔ ادب اپنی جگہ ہے، ادب کو حاصل کرنا اور اپلائی کرنا یہ ایک اور وجہ ہے۔ یہی باتیں ہیں جو کلام مقدس میں ہم نے دیکھی ہیں، رومنز میں دیکھی ہیں۔ رومنز میں بہت چرچ تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ جو بچے آئے ہیں نئے، اور میں آئندہ کبھی پھر دوبارہ سے اس کتاب کو، غلطیوں کی کتاب کو ختم کرنے کے بعد جب پوچھا جائے تو چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہولی بائبل جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور اب میں سننا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جس نے سنا ہے، جس طریقے سے بھی کسی سے بھی سنا ہے، کسی پادری سے بھی سنا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، یا اس کی عقل میں یا اس کی دانش میں جو بات آتی ہے کہ یہ کیا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، تاکہ ہم سب جی خوشخبری۔ آمین، ٹھیک ہے۔ اور کیا معنی ہے؟ جی مقدس کے بعد وہ خدا کی باتیں جو لکھی، بالکل ٹھیک ہے، مقدس اور ٹھیک ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں دوبارہ، پہلے بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ دوبارہ بیان کر دیا جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بھائی جان نے کہا کہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں، اور سسٹر پروین نے، یا چھوٹی ہیں مجھ سے تو میں اس کو سسٹر کہہ سکتا ہوں، اگر بہت چھوٹی ہیں تو بیٹی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو بیٹے، سو کائنڈ آف یو، میرے منہ سے بیٹے ہی نکلتا، آئی ڈونٹ نو وائی، اینی ہاؤ، تھینک یو بہن۔ تو اس طرح اس کو اور زیادہ عزت دینے کے لیے خوشخبری جو ہے ٹھیک ہے، لیکن خوشخبری جو ہے وہ بہت لوگ سناتے ہیں، بہت لوگوں کی کتابیں میں خوشخبری ہے، لیکن جو سسٹر پروین نے کہا ہے وہ خوشخبری سے بڑھ کر ہے، مقدس، ٹھیک ہے، مقدس کتاب لکھا ہوا ہے، کتاب مقدس، جب آپ ٹائٹل دیکھیں کتاب کا تو اس میں کتاب مقدس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور بڑھ کر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات اور بھی ہے جو کلام مقدس کا ایک بھید ہے، وہ ہے یہ ایک پیمانہ ہے۔ کون سا پیمانہ ہے؟ ناپنے کا پیمانہ ہے، انسان کی زندگیوں کو ناپنے کا پیمانہ ہے، یہ یاد رہے۔ اب نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے یا میں پوچھ لوں چلیں تو آپ کے میرا خیال زیر نشین ہو جانا چاہیے کہ یہ ناپنے کا پیمانہ ہے،
जैसा कि मुकाशफा में लिखा हुआ है कि कसौटी दी गई और उसे कहा नाप। ये नापने का वो पैमाना है, वो कसौटी है जिससे जिंदगियों को नापा जाता है, और ना इसको टेबल की तरह नापना है कि कितना बड़ा है कितना, या जमीन को नापना है। ये इंसान की जिंदगियों को नापता है कि कितना गहरा है, कितना ऊपर है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, और कितना खुदा के साथ मुंसलिक है, और तरीकाकार क्या है इसका। उस तरीकाकार को देखने के लिए फर्क फर्क चीजें पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में दर्ज हैं, लेकिन अपोस्टल्स जो हैं, जो शागिर्द हैं, वो एक ही तरीका बताते हैं जो बाइबल हमें बताती है, जो हमें नाप लेती है, जो हमें नाप लेती है कि हाँ मैं कितना बड़ा हूं, कितना छोटा हूं, कितना मोटा हूं, कितना लंबा हूं। नाप कर बताती है कि एक ही तरीका हमारे पास है, वो यीशु का है। तो ये है, इसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं और इसको बाइबल कहते हैं, इसको होली बाइबल कहते हैं, जो हमें नापती है। इंसान की जिंदगियों को नापने का पैमाना इसका मकसद है होली बाइबल का। अगर आपको किसी और से पता चलता है तो देन इट्स ओके, लेकिन ये ना कहिएगा कि मैं गलत कहता हूं या सिस्टर परवीन गलत कहती हैं या जॉन भाई जो है बेटा है या भाई है वो गलत कहता है। गलत कोई भी नहीं होता। ये जितनी जिसकी समझ होती है वो उतना ही बयान कर सकता है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक देन है, और जितनी समझ के साथ वो इस्तेमाल करता है, जिस तरह मालूमात बढ़ती जाती है तो इंसान बढ़ता जाता है, हिकमत के साथ, इल्म के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। इसकी एक और मिसाल भी दूंगा कि ये जिस तरह आपने देखा होगा, मैं अब दुनियावी मिसाल देने लगा हूं कि ये एक बड़ा बंडल है। इट्स ए बिग बंडल ऑफ ब्लेसिंग स्टफ। इट्स ए बिग बंडल ऑफ ब्लेसिंग स्टफ, एंड apostles they bind it with the different packages. It's a big bundle of blessing stuff. Apostles they bind it with the different packages. A big stuff जो क्या है, आपने देखा होगा कि जब माल एक जगह से दूसरे इलाके में जाता है, दूसरे मुल्क में जाता है, तो वो कंटेनर्स में जाता है। बिग बंडल कंटेनर्स में जाता है, और जब कंटेनर्स में जाता है तो वहां पे कस्टम्स के लोग जो होते हैं, जैसे अपोस्टल्स को मैंने कहा, दे बाइंड। कस्टम्स वाले जो होते हैं वो डिफरेंट कंपनियों को, वो बिग कंटेनर में से डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट जो एड्रेस लिखे होते हैं उनको एक जगह कर देते हैं। और तीसरा पैकेज विद अ डिफरेंट पैकेज। और जब वो कंपनियों को बुलाते हैं तो कंपनियां खोल के उस इदारे को, उस हिस्से को, यानी पर्सनल जो आइटम्स हैं वो पर्सनल ऑफिसर को देते हैं, जो इंजीनियर हैं जो उनको इंजीनियर को देते हैं, जो जॉइनरी वाले हैं जॉइनरी को देते हैं, इलेक्ट्रिक वाले को इलेक्ट्रिक देते हैं। कंपनियां उनको डिफरेंट पैकेजेस जो होते हैं उसमें उनको वो तकसीम कर देती हैं। तो सेम थिंग इज द होली बाइबल। इट्स अ बिग बंडल, ब्लेस्ड स्टफ इसमें है, और अपोस्टल्स ने उनको बाइंड किया हुआ है एक किताब में, एक बुक में। कितनी बुक हैं टोटल बाइबल में? 66। आमीन। ठीक है, 29, 27, 66। ठीक है। अब ये बिग बंडल जो है, ठीक है, ये बाइंड किया गया है डिफरेंट बुक्स में, और बुक्स डिफरेंट लोगों ने लिखी हैं, पैकेज बना दिया है एक हमारे लिए। अब जैसे आज गलतियों की किताब हम देखते हैं, ये पैकेज जो खोला गया है ये गलतियों की किताब के लिए खोला गया है। अब पूछना चाहूंगा, रोमन्स की किताब क्यों लिखी गई? रोमन्स में भी काफी चर्च थे। रोमन में सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं थे,
दूसरे चर्चेस भी थे जो रोम की कल्चर के मुताबिक, जो यहूदियत की कल्चर के मुताबिक वो चर्च मौजूद थे। और रोम के चर्चेस में उनके रोम के जो होता है बादशाह होता है, उसके स्टेच्यूज भी वहां लगे होते थे। और जो यहूदियों के थे उनके भी, जैसे स्टार्स, यहूदा का है स्टार्स, और जैसे वो कैंडल्स हैं, उनके भी चीजें वहां मौजूद थी। और अब जो मसीह का चर्च है वो बताता है, अपोस्टल्स उसके बताते हैं कि मसीह का चर्च कैसा है, तो वो गलतियों में जाते हैं, रोमन्स में जाते हैं। और रोमन्स को, जो कि रोम के कानून हैं, जो कि यहूदियों के कानून हैं, उनको साथ रखते हुए यीशु का कानून बताते हैं और शरीयत बताते हैं कि यीशु क्या है। ये रोमन्स को खत लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद रोमन्स के बाद आ जाता है, रोमन्स के बाद है अमाल, सॉरी पहला अमाल है, पहला अमाल है। अमाल में ये अमाल हम देखेंगे, ये हर एक किताब में हमें मिलेंगे। इसीलिए गॉस्पल से एकदम फौरन शुरू करने के बाद अमाल किए हैं कि अब उन लोगों के अमाल कैसे हैं। गॉस्पल तो दे दिया गया, लेकिन उनके अमाल कैसे हुए, उसके अमाल रोमन्स में जो हैं वो कैसे होंगे और यीशु के मुताबिक होंगे जो गॉस्पल दिया गया है। और वो कौन बताएगा, उसके शागिर्द बताएंगे। इसी तरह रोमन्स के बाद फिर आगे आ जाए क्रंथन्स। क्रंथन्स के बारे में आ जाए तो क्रंथन्स के बारे में हमने देखा था कि उन्हें बताया गया था कि क्या क्या जरूरत है, क्योंकि उनमें जुलाई झगड़े तफरके और उसके बाद सारा कुछ हमने देख लिया था। और क्रंथन्स के बाद अब आते हैं गलतियों में, राइट। और अगर आप इसको ज्योग्राफिकली भी देखना चाहें, जो कि बड़ा जरूरी होता है इंसान की जिंदगी के लिए, नक्शेवार, ठीक है। और वो अगर किसी के पास किताबें मुकद्दस होगी, जो अमूमन पेंटिकॉस्टल लोग इस्तेमाल करते हैं या प्रेस्बिटेरियन करते हैं, जो आई मीन टू से कैथोलिक वालों की किताब नहीं, मजहबी किताब नहीं जो लिखी गई है, जो पेंटिकॉस्टल वगैरह ने लिखी है, जो लाहौर में बाइबल सोसाइटी ने लिखी है, सॉरी प्रोटेस्टेंट बाइबल उसको। अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। उसका लास्ट चैप्टर आप देखें, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, ठीक है। उसमें किसी के पास है, देख रहा है कोई या नहीं देख रहा? मैं ज्योग्राफिकली अब बताना चाहता हूँ आपको। जी मैं देख रही हूँ, इसमें तो कितने मैप हैं, 1 2 3 लास्ट वाला बेटे, 7 सबसे लास्ट पेज, का रोमा का समय। ठीक है ना। ये पूरा रोम है, ये सारा पूरा रोम है। यरूशलेम से शुरू हुए यहाँ, फिर आगे देख ले वो कहाँ कहाँ जाते हैं। ये गलतियों जो आज हमने पढ़ना है वो कहाँ पे है, देख लें आप। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किस किस जगह जाएं और किस किस जगह में किस किस्म के प्रॉब्लम थे। आज हम जिस जगह जाते हैं और वहां जाके देखें कि किस किस्म के प्रॉब्लम है, तब हम यीशु को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह देख लीजिए आसिया में, और क्रंथन्स देख लीजिए। अगर आप उसको उसके बाप को टर्न ओवर कर लें तो उसकी बैक साइड पे देख लें, फिर नक्शा बताया हुआ है, वो छोटा करके बताया है। पहले वाला लास्ट में फुल है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद एक और छोटा सामने आपको नजर आ रहा है। तो ये सारे आप घर में स्टडी कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ कहाँ गए थे और कैसे कैसे गए थे। आसान नहीं था, आजकल तो बहुत आसान है, टिकट लिया चला गया, और यहाँ पे आसान नहीं है। यहाँ पे देखें पौलुस रसूल कहाँ कहाँ से होते हुए, क्रंथन्स जो है ये ऊपर है तस्सलुनीकियों के पास, नीचे उसके बिल्कुल नीचे देखे क्रंथन्स ये है, ऊपर तस्सलुनीकी है। इस तरफ फिर आसिया जो गलतियों यहाँ है, पूरे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा जाके उसने पौलुस रसूल ने खुदावंद की खिदमत की हुई है। तो अब हम आते हैं खुदावंद के कलाम के पास। बैकग्राउंड हमने देखा, ताकि इस बैकग्राउंड के साथ साथ हम कलाम मुकद्दस को अच्छी तरह से जान जाएंगे और अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। और अगर और जानना चाहते हैं, कोई और पादी साहब देता है तो उसको ज़रूर आप अपनाएं, मैं भी अपनाता हूँ। और इसी तरह हम
आगे बढ़ते जाते हैं। खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं जबकि कलाम मुक़द्दस हमने आज खोल लिया है, उसमें से तमाम हदायत जो हमारी नसीहत के लिए दुनियावी तौर पर थी हमने वो जांच और पहचान के लिए इस्तेमाल की। अब यीशु नासरी रूह को मौका देते हैं कि वो हमारी हदायत और हमारी निगहबानी करे। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। गलतियों की किताब भाई और बहनों 6 अबवाब पर मुश्तमिल है, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ख़त के ज़रिए उन लोगों को जो नादान हैं और जो नासमझ हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है, उनकी पार्टिसिपेशन जो है, उनकी चॉइस जो है और उनकी चाहत जो है, डिज़ायर जो है, और उनका एक बात को छोड़ना और दूसरे से जुड़े रहना, उनकी सेपरेशन जो है वो गॉस्पल के ज़रिए किस तरह होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, ये इजहार करते हैं कौन? पौलुस रसूल। किनको? गलतियों को। और ये इजहार कौन करता है? आज हमें जो बैठे हुए हैं, अगर हमारी जो निस्बत गलतियों के साथ या रोमन्स के साथ या क्रंथन्स के साथ मिलती थी या है, तो हमें किस तरह उन इन्वॉल्वमेंट में, उस पार्टिसिपेशन में, उस चॉइस में, उस डिज़ायर में, उस लीव एंड क्लीव में, सेपरेशंस में और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए किस तरह पेश की जाती है। अब शुरू में देख लीजिए कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह से है। गलतियों की किताब उसका पहला बाब, पहली और दूसरी आयत मैं ही पढ़े देता हूं और फिर मैं चाहूंगा कि तीसरी और चौथी और पांचवी आयत कोई और पढ़ दीजिएगा मेरे लिए। पहली आयत में यूं लिखा है, गलतियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत लिखते हैं, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु अल मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं, गलतिया की कलीसिया को लिखते हैं। अब पौलुस रसूल यह बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं? ये तो कोई जो मैं पेश करने लगा हूं, ये ना तो कोई इंसानों की तरफ से है, ठीक है, और ना उसके सबब से है। जो मैं आपके सामने इंसान बैठा हूं और बयान कर रहा हूं, ये मेरे सबब से नहीं है और ना मेरी जानब से है। पौलुस रसूल ने भी यही बयान किया है। कोई भी आपको कहता है या कोई भी कुछ कहता है खुदा के बारे में, वो खुदा की तरफ से है, वो किसी की तरफ से नहीं है। और वो खुदा कौन है? बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। और वो बाप है जिसके सबब से किसने यीशु अल मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ गलतिया की कलीसिया में हैं। अब ऐसा है कि गलतिया की कलीसिया जो ईमान लाए हैं या ईमान लाने वाले हैं, और या जिन्होंने नहीं सुना, उनके लिए ये किताब मुकद्दस ये खत लिखते हैं। अब तीसरी, चौथी, पांचवी आयत कौन पढ़ेगा? जी जरूर। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत। खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खुलासी बख्शे। उसकी तमजीद अबुलाबाद होती रहे, आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत और खुदा का शुक्र, आमीन। ब्यूटीफुल बेटे, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुदावंद का नाम बहुत खूबसूरती से अपने दिल में और अपने मुंह में रखते हैं। ये फजल हुआ और ये दिया गया
किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि खून बहाए गुनाह की माफ़ी नहीं है, और खुदा अपने इस अहद को या इस जो मुस्तकीम बात उसने कर दी है उसको बदलता नहीं है। जैसे उसने कहा है कि सूरज ईस्ट से निकलेगा, सूरज ईस्ट ही से निकलेगा, वैसे नहीं कभी निकलने लगा। ठीक है, तो इस तरह आंधी जो चलती है वो नहीं जानती, लेकिन आंधी चलती जरूर है। ठीक है, तूफान आते हैं, पहाड़ कायम किए जाते हैं, वो कायम ही रहेंगे। इस तरह जो हमारे गुनाहों के लिए क्या दिया? फजल दिया। क्या दिया? इत्मीनान दिया, ताकि हमें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। किस चीज के लिए? हमारे गुनाहों के लिए। और वो गुनाह अनजाने में, उन्हें खताएं कहते हैं, और वो गुनाह जो जानने में, और वो गुनाह जो हमारी ख्वाहिशों में, जो हमें खींच कर आसानी से खताओं में मुब्तला कर देती है, और हमसे खताएं पे खताएं, खताएं पे खताएं, खताएं पे खताएं होती रहती हैं। क्योंकि वो ख्वाहिश जो है ना तो मेरी फैमिली के लिए है, ना तो मेरे हमसाए के लिए है, और ना मेरे खुदावंद को जलाल देने के लिए है। वो है एक प्राइड, एक फख्र जो मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता हूं, उसमें कभी कामयाबी नहीं होती। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। लेकिन दूसरों के लिए ख्वाहिश को बर्दाश्त करना, वो है असली बात। गुनाहों के लिए जो बहुत से गुनाह हैं, 6-7 गुनाह हैं जो आगे जिस्म के लिहाज से और रूह के लिहाज से करता है, तो वो खताएं भी माफ़ कर देता है, गुनाह भी माफ़ कर देता है, जो जिस्म के लिहाज से किए होते हैं, जो हम चौथे बाब में देखेंगे। खैर, कल पादरी आशिक ने वो बयान किए थे, लेकिन हम भी देखेंगे उन्हें। और फिर कहते हैं हमारे खुदा की मर्जी के मुआफिक हमें अगर हम खुदा की मर्जी के मुआफिक अपनी ख्वाहिश को ढाल लेते हैं और उसे कह देते हैं कि खुदावंद बोल, आज मैं सुनता हूं, मैं सिर्फ सुनता ही हूं। अब वो सुनने के साथ साथ क्या करता है? अपने बोल को कायम रखता है। और मैं पहले मेरा ख्याल बता चुका हूं, कलाम जो है वो हमें बोलना सिखाता है। जैसे अभी बेटे ने पढ़ा, जॉन डैरल ने, भाई ने पढ़ा, वो हमें बोलना सिखाता है कलाम। रूल कुदस क्या है? रूल कुदस हमें चलना सिखाता है। उस बोल पर जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो हमारे मुंह से निकलता है, उस पर रूल कुदस चलाता है। अगर मैं अपनी ख्वाहिश करता हूं तो रूह नहीं चलाता। अगर मैं अपनी ख्वाहिश खुदा के आगे डाल देता हूं तो रूल कुदस जो है, जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में ठहरा, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, क्या होता है? मर्जी के माफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शता है, निजात देता है। क्योंकि आप देख लें, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी अपनी ख्वाहिश है। हो सकता है कि खुदा उसको प्रेसिडेंट ना बनाना चाहता हो, और अगर बनाना भी चाहता हो तो बन भी गया तो उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं जो आवाम के फायदे के लिए नहीं होती। तो क्या होता है? वो मुल्क तबाह हो जाता है, वो अदारे तबाह हो जाते हैं। तो क्या होता है? खलासी बख्शते हैं, उसकी तमजीद और अब्दुल्लाबाद तक उसकी हम्द होती रहे। ठीक है, अब आते हैं हम ये तो थी इन्वॉल्वमेंट जो जहां के साथ हमारे साथ होती रहती हैं। और इस इन्वॉल्वमेंट में मेरे पास कितने 7 मिनट और हैं। दुख तकलीफें दुनिया में ही हमें मिलती हैं, खताएं भी मिलती हैं। क्यों? हम दुनिया के से इन्वॉल्व हुए होते हैं। हमारी इन्वॉल्वड जो होती है वो दुनियाओं में होती है, और दुनिया जो है वो हमेशा दुख, दर्द और बोझ ही देती है। इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। और इसके बाद हम आते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं आयत में, जो है पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट तो हो गई जाने और अनजाने में, और जो पार्टिसिपेशन है वो सरप्राइज पैदा करती है
जो 6 और 7वें और 8वें आबाद में कौन पढ़ेगा? हालेलुया। लड़कियों के नाम पहला चैप्टर 6 से 8। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया है उससे तुम इस कदर जल फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बात ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाई तुम्हें सुनाए तो मालूम खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बहन। अब ये इन्वॉल्वमेंट दूसरी चीज़ों की थी जिसमें क्या होता है, हमारी पार्टिसिपेशन हो जाती है। और वो पार्टिसिपेशन कैसी होती है कि हम घबरा जाते हैं, या तो हमारी चाहत जो है, हमारा फैसला जो है वो गलत होता है, या हमारी चाहत जो है वो गलत होती है, या हम घबराहट से, डर की वजह से। कितनी दफा लिखा है कलाम मुकद्दस में कि मत डरो? 366 टाइम्स। कितने दिन हैं एक साल में? 365 days in a 1 year। एक दिन में ज्यादा डरता हूं। एक साल में एक दिन में ज्यादा डरता हूं। और वो डरना जो है, वो एक्स्ट्रा जो है, वो शैतान ही पैदा करता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारी पार्टिसिपेशन जो होती है कौन सी वजह से होती है? वो घबराने की वजह से घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। असल में ये काम मुझसे ही शुरू होता है। जो रहनुमा होते हैं, जो प्रीच करते हैं, काम उन्हीं से शुरू होता है और ये आगे बढ़ता 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 ये उसकी तरह फैल जाता है, घुन की तरह, कि एक खमीर जो है वो पूरे गुंदे हुए आटे को, थोड़ा सा खमीर जो है पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो वो कैबिनेट तक चला जाता है या प्रेसिडेंट तक चला जाता है, और वो प्रेसिडेंट तक जाने से पूरा जो अमला है वो खराब हो जाता है। खुशखबरी जो है वो किसकी होनी चाहिए? जो आसमान से जमीन पर आया और जिसकी गवाही किसने दी है? फरिश्तों ने दी है, और हमें सुनाई जाती है। और जो सुनता नहीं है वो मलाउन है। ठीक है, वो मलाउन है। क्या है? जैसा हम पेशतर कह चुके हैं कि वैसा ही अब हम फिर कहता हूं कि खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, और अगर तुम्हें और खुशखबरी सुनाता तो मालूम है अब मैं आदमियों के दोस्त बनाता हूं या खुदा को। क्या आदमियों की खुशखबरी खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। दैट इज द बॉटम लाइन। दैट इज द बॉटम लाइन। मैं इसको जल्द 2 मिनट है मेरे पास, मैं इसको, और मेरा ख्याल है इस मौजू तक आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ गए होंगे, और ज़्यादा टिप्स जो मुझे देनी चाहिए वो मैंने आपको दी हैं, और इसके अलावा आप खुद भी देखिएगा। अब कहते हैं 11वें आयत में, ऐ भाइयों मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई वो इंसानों की से नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाएगी थी, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशवा हुआ था। क्या मुकाशवा हुआ था? पहला करंथियों उसका 11वां बाब उसकी 23वां आयत में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो बात मुझे खुदावंद से पहुंची वो मैंने तुम्हें पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी? कौन सी बात पहुंचाई थी? हाँ जी, कि वो जिस रात पकड़वाया गया क्या किया उसने? हाँ हाँ, और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। उसने प्याला लिया और शुक्र करके और घुटी और कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए एक नया अहद है। हालेलुया। थैंक यू बेटे। हम किस किस तरीके से इस बाइबल को जोड़ें
कोई तरीका बचा है ऐसा कि जो बाइबल यीशु की को नहीं जोड़ता? किस किस तरीके से हम इसका बयान करें जो हमारी अकल जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो हमारी अकल बेकार हो जाती है। किस किस तरीके से खुशखबरी सुनाएगी, और इंसानों की से नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से जो मुझे उसका मुकाशवा हुआ कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और उस पर बरकत चाही। That roti is not going to build your muscles. It's build your soul. It build my soul. That I can talk nicely and I can talk about God, Jesus Christ. The way I talk, He gave me the power. He gave me the strength because I know where I am going at. I know what the place He has prepared for me. I know that how He can save me, how He can protect me, how He can not here, the place forever and ever and ever. अपने बुजुर्गों की रिवायत को नहीं सरगर्म था, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट से मखसूस कर लिया था और अपने फजल से बुला लिया था, जिसकी उसकी खबरी है और अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों को उस खुशखबरी दूं। ना मैंने गोश्त और ना मैंने खून सुला ली और ना यरूशलेम में उसके पास गया जो पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क चला गया। हालेलुया। 3 वर्ष के बाद कैफा से मुलाकात की। He was very much connected with James. क्यों कनेक्टेड था? Because first after his crucifixion, मैं डेथ नहीं कहूंगा, after his crucifixion he came to James, याकूब जो उसका भाई था उसके पास आया और उसे कहा कि तू मेरा रिश्तेदार भी है और हम एक ही घराने में पले बढ़े हैं। गो मैं छोटा हूं, लेकिन तू जानता है मेरी शख्सियत को, तू जानता है मेरी हालत को, तू जानता है मेरे उठने बैठने को। तुझे मैं इख्तियार देता हूं कि मैं घर से पहले शुरू करूं। ठीक है। और फिर बड़ा होशियार था पौलुस रसूल, वो गया, I have done it, I am over 2 minutes, I am sorry, वो मैं खत्म करता हूं अभी। वो गया याकूब के पास, जो कि लिखा है 19वें आयत में, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। याकूब से मिलने के बाद वो फौरन कायफा के पास गया जो बदल चुका था। कायफा भी बदल गया था, जो सरदार था यहूदियों का, जो हैकल का रहनुमा था और जो चुन चुन के पौलुस रसूल के जरिए क्रिश्चियंस को मारा करता था। अब पौलुस रसूल और कायफा में बड़ी दोस्ती थी और यीशु के जान देने के बाद जो कायफा है वो बदल गया था, और जब बदल गया था तो पौलुस रसूल चाहता है कि मैं भी बदला हूं, वो भी बदला है, हम दोनों मिलकर कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन कायफा ने अपनी वो खुदी ना छोड़ी, क्रिश्चियन तो बन गया लेकिन वो खुदी ना छोड़ी। वो डरता था, वो छुपता था कि यार इतना बड़ा आदमी हूं, ईसाई तो मैं हो गया हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई कहे यार ईसाई हो गया, यार कड़ो इन्हों बाहर, ये रोमन नहीं है। ठीक है। और याकूब के पास गया, याकूब से जो है वो बरकत हासिल की और उससे और कलाम सीखा। कितने साल तक सीखा? जो कि दूसरे बाब में लिखा है, आखिर 14 वर्ष के बाद वो बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। 14 वर्ष उसने सीखा। फ्रॉम होम, फ्रॉम जेकब, फ्रॉम होम कायफा, फ्रॉम होम बरनबास,
جس نے اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب میں اس کے آنکھوں کے چھلکے اتارے تھے. 14 سال تک بھائیوں ہم نے سیکھا. آج میں 2 دن میں کلام سن کر یا پڑھ کر میں استاد نہ بنوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہ کروں. میں استاد نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ حاضر جان کر جو جھوٹی نہیں, جو 21ویں آیت پڑھتا ہے. اس کے بعد میں سوریہ اور کلیکیا کے علاقوں میں اور یہودیہ کی کلیسیا میں جو مسیح تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں, مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم میں ستایا کرتا تھا اور اپنے اس دین کی خوشخبری دیتا پھرتا تھا, پہلے تباہ کرتا اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی. وہی لوگ, سب سے پہلے تو میں اور پھر وہی لوگ. خداوند نے چنا ہی اسی لیے تھا. خداوند نے یسوع کو چنا ہی اس لیے تھا کہ پہلے تو کنونس کرے رومنز کو, پھر رومنز کے جو یہودی ہیں ان کے سردار کو کنونس کرے, اور پھر عیسائیوں کا جو سردار, یسوع کا جو سردار, جو اس کا یعقوب کا بڑھا بھائی ہے, اس کو کنونس کرے. اور اس کو آخر میں یہ بات کروں گا, سوری آئی ایم ٹیکنگ یور لاٹ آف ٹائم, 5 minutes I'm over, I'm so sorry. اس کے بعد کنونس کرنے کے بعد ان دونوں کو اس نے, یعقوب کو بھی ترازو میں تولا, اس کو گھٹا, اس کو کم پایا. کائفہ کو بھی ترازو میں تولا, اس کو بھی کم پتا کہ. برناباس کو تولا, اس کو بھی. پترس کو تولا, اس کو بھی. آگے دیکھیں گے ہم اعمال کی کتاب میں ہمیں سب کچھ بتایا کہ پولس رسول نے اعمال کیسے کیے ہیں, اور کسی وقت اور موقع ملا تو میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو میں تھیم بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی خدا نے چاہا میرے لیے دعا کیا کرو کہ میں آپ کے پاس آؤں. میں آپ کے پاس آ کے جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس کے ذریعے میں گرافکلی آپ کو بورڈ پہ سمجھاؤں. وہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. خداوند کا نام جلال پائے. اور اسی طرح خداوند نے اس بندہ کو جو رسول نہیں تھا رسولوں میں شامل کیا, اور رسولوں میں شامل کر کے جو جانتے تھے انہیں بھی, جو نہیں جانتے تھے انہیں بھی, اور جن کی آنکھیں بند تھیں ان کو بھی. میرے جیسے آدمی کو جن کی آنکھیں بند تھیں, کرسچن گھرانے میں پیدا ہو کے بھی میری آنکھیں بند تھیں. خداوند ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اگلے ہفتے کے لیے دوسرے باب کے لیے تیار کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. کہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز دعا میں ہماری رہنمائی کریں. تھینک یو سسٹر نکی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو بس صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو. قدوس 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 رحمتوں کے بانی, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ آپ نے اپنا مکاشفہ اپنے بندے کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اپنے خادم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. تھینک یو خداوند میرے باپ. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پوری جماعت آپ کے آگے سرنگو ہوتی ہے خداوند, آپ کی حضوری آتی ہے باپ, کیونکہ ایسا کرنا واجب ہے میرے خداوند. سجدہ کرنا خداوند صرف آپ ہی کو واجب ہے میرے خدا. میرے باپ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کی اس پاک محبت کے لیے جو آپ نے ہم سے کی. آپ خداوند ہمیں خداوند اپنے ان خادموں کے ذریعے سکھاتے ہو. آپ کا شکر ہو اس مقدس کلام کے لیے جو آج ہم نے سنا. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں باپ. تھینک یو میرے روح پاک. اے رحیم خداوند, برکتوں کے بانی, رحمتوں کے بانی, آپ کے اس کلام سے ہر ایک برکت پائے. میں نہیں جانتا اس جماعت میں کس کی کون سی پرابلم ہے, لیکن آپ جانتے ہو. ہمیں زمین پر رہتے ہوئے خداوند کسی نہ کسی مشکل, پریشانی, دکھ, تکلیف, ٹینشن میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں فخر ہے کہ یسوع آپ ہمارے ساتھ ہو. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. باپ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کا صلح کا عہد ہمارے ساتھ ہے. پہاڑ تو جاتے رہے, ٹیلے ٹل جائیں,
لیکن میری شفقت تم پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرے صلح کا عہد تجھ پر سے ٹلے گا نہیں. یہ پوری جماعت اسی اطمینان سے خدا آپ کی حضوری اکٹھی ہوئی ہے کہ آپ کا اطمینان ہمارے پاس سے جاتا نہیں. آپ جاتے ہوئے اپنا اطمینان دے گئے تھے، وہ اب تک ہے ہمارے پاس. رحیم خدا، جب جب آپ کو بلاتے ہیں آپ آتے ہو اپنے وعدے کے مطابق. تھینک یو خدا اس مقدس کلام کے لیے، اس پوری جماعت کے لیے، آپ کے خادم کے لیے ڈھیر و برکت چاہتا ہوں روح پاک. تھینک یو خدا آپ نے میرے لبوں کو استعمال کیا اپنی تعریف کے لیے. تھینک یو آپ کا خدا مجھ جیسے ریجیکٹ انسان کو آپ نے سلیکٹ کیا اپنے الفاظوں کے لیے، اپنے نام کے لیے. تھینک یو آپ کا. تھینک یو سو مچ یسوع. اس مقدس کلام کے لیے شکر ادا کرتا ہوں اور اس کلام سے ہر ایک کو برکت ملے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین. آمین آمین. آمین. تھینک یو بھائی جان بیرل. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے خدا یسوع مسیح کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو. آئیے ہم اپنے ریکویسٹ خدا کی طرف خدا کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے نیچے لکھا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ ہے تو پلیز آپ پوسٹ کر دیں. تو آپ نیچے لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں، اپنا مائک اور میوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں. جیسا کہ بھائی کلیم رضا نے لکھا ہے کہ پلیز میری جاب کے لیے، میری فیوچر پلانز اور فیملی بلیسنگز کے لیے دعا کرنی ہے. بھائی کیشف میئر ان کی جو ڈیلی جو پرائر ریکویسٹ ہے ان کی منسٹری کے لیے، ان کی فیملی